नमस्कार। मैं डॉक्टर लवकुश द्विवेदी, प्रोफेसर ऑफ इम्यूनोलॉजी एट द डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे लाइफ से, हमारे लिविंग कंडीशन से रिलेटेड होगा, दैट हाउ टू लिव अ सक्सेसफुल और satisfied life. So, what is the science which involve behind living a successful life, and what is the art of living, how to manage the life, and how we can do the commerce of happiness. So this is something which is very crucial and I think very important to be understood by all, right? So in very first, if you see, being human, what kind of characteristics one should have, because we all are human. So what kind of characteristics we should have? So if we take B, stand for that one should be benevolent and beloved. E means one should be empathetic and empowering. I, intuitive and inspiring. N, not a narcissist, modest. G, giver and gratifying. H, humble and helping. U, useful and understanding. M, moralistic and motivating. A, altruistic and aspiring, and N, that is natural and nurturing. So being human, if we are acquiring these much of characteristics within ourselves, then obviously we can live a life as a successful human being. So if one by one we take that exactly what is the meaning of being benevolent or beloved. So if you see, being human, we should be a person that makes other feel special. Be known for your kindness and grace. Don't behave like that you are special. Successful life is that where you are letting other feel that you are special. That is your kindness, that is your grace. So be known for that purpose. Don't keep yourself at that position where you feel like I am only and only special for others, but no other one is special for me. So don't do like that. Let others feel special by your behavior, by your kindness. That is a great thing. So that is what the one should be a benevolent. Then what is beloved? Be filled with intense emotion of affection, warmth, fondness, and regards toward the person. Sometimes what happens, if we achieve something in our life, that achievements are disturbing our life. लोग कहते हैं कई बार हमको हमारे उपलब्धियों का नशा चढ़ जाता है और उस कंडीशन में हम दूसरों के प्रति उतना काइंडफुल नहीं रह पाते और वो कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर को या हमारे जो आइडेंटिटी है, सामाजिक आइडेंटिटी है, उसको डिस्टर्ब करता है या उसको रूइन करता है. सो वी हैव टू फील विद इंटेंस इमोशन फॉर अदर्स. अगर आप किसी दूसरे की भावनाओं को समझोगे तभी आप उसकी तरह से उसकी परेशानियों को समझ करके आप उसका निदान सोचोगे और इसके लिए आपको इमोशनल होना बहुत जरूरी है. इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द पीपल, बी फिल्ड विद intense emotion, then only you can connect with the people. So exactly that is what the beloved means. Now there is one video what the real kindness is, but ultimately if you see, kindness is what? When you help even when you are struggling too. Take an example, like sometime what happen, we are ready to give help to other, but in that condition जब हमारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो, हमारे पास एक्स्ट्रा है तो मैंने किसी दूसरे को मदद कर दिया. अगर हमारे पास नहीं है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब खुद ही नहीं है तो हम किसी दूसरे को क्या दें. लेकिन अगर उन परिस्थितियों में भी जहां पर कि आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर उन परिस्थितियों में भी आपके पास जो कुछ भी है उसमें से भी अगर आपके अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है, दैट इज एग्जैक्टली द रियल काइंडनेस. आपके पास एक्स्ट्रा होने पे अगर आप देना चाहते हो, वो तो सभी करते हैं. अलग ये है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा नहीं भी है फिर भी आप किसी दूसरे की मदद करना चाहते हो, दैट इज एग्जैक्टली द काइंडनेस इज. सो अंडरस्टैंड द रियल डेफिनेशन ऑफ द काइंडनेस कि एग्जैक्टली काइंडनेस है क्या. किसी आपके पास बहुत सारा पैसा है और किसी को आप 5 रुपए दान देते, दैट इज नॉट अ रियल काइंडनेस. जहां जिस चीज की आपको भी जरूरत हो लेकिन फिर भी अगर आप उस समय ये फील करते हैं कि किसी दूसरे को शायद
इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, तब आप अगर उसको उस चीज को दे देते हो, ऑफर करते हो, दैट इज व्हाट द रियल काइंडनेस इज. What so one should understand that what is a kindness. So ultimately it is a kindness which should dominate on all everything. सबसे अगर आप देखें तो कुछ भी हो रहा हो, सबसे ऊपर हमको क्या रखना है, हमारी काइंडनेस. एक एग्जांपल यहां पर लिया गया है, आप देख सकते हैं, आपने शायद सुना होगा, कार्टस पुलित्जर प्राइज के विनर थे. उन्होंने इस फोटोग्राफ के लिए उनको एक बहुत ही मीडिया जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया, और उन्होंने इस फोटोग्राफ को बड़ी मेहनत के बाद जो है वो लिया, और उसमें वो ये साबित करना चाह रहे थे कि जो पीछे आपको दिख रहा है, जो बैठा हुआ है, वो ये वल्चर ये इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा भूख से जब दम तोड़ देगा तब हम इसको खा जाएंगे. और इस पिक्चर को लेकर के उन्होंने इमोशंस डालने की कोशिश करी, और लोग इमोशनली इससे कनेक्ट हुए, और इस वजह से इस पिक्चर की इतने लाइक्स आए, और इस आधार पर उनको पुलित्जर प्राइज मिला. लेकिन किसी एक इंटरव्यू में उनसे जब बात हो रही थी प्राइज मिलने के बाद, तो लोग, किसी रिपोर्टर ने उनसे कहा कि एक्चुअली वहां पर एक वल्चर नहीं था, वहां पे 2 वल्चर थे. कहाँ 2 वल्चर हैं? दूसरा वल्चर कौन है? वो फोटोग्राफर जो इस चीज का इंतजार कर रहा था कि ये बच्चा मर जाए या ये कंडीशन हो और तब मैं फोटो लूं. एग्जैक्टली वहां पर फोटो लेना उतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी था इस बच्चे को खाना खिला करके इसकी भूख शांत करना या उस वल्चर को वहां से भगाना. लेकिन उन्होंने उसमें जो जरूरी समझा वो क्या समझा कि हमको फोटो चाहिए, बिकॉज फोटो से हमारी उपलब्धि होगी, हमको अवार्ड मिलेगा. लेकिन एग्जैक्टली वहां पर डोमिनेट क्या करना चाहिए था? काइंडनेस. अगर उनके अंदर काइंडनेस होती तो शायद वो करते जो किसी ह्यूमन बीइंग को सबसे पहले करना चाहिए. इसके लिए व्यक्ति के अंदर इंटेंस इमोशंस होने चाहिए जो यहाँ पर नहीं दिखे. और इतना प्राइज जीतने के बाद भी, इतना पुरस्कार जीतने के बाद भी उनको वो चीज नहीं मिली जो सेटिस्फैक्शन उनको मिलना चाहिए था. उनके एक क्वेश्चन ने, उस रिपोर्टर के क्वेश्चन ने उनके सारे अचीवमेंट से पानी फेर दिया. दूसरा आप देखें, आप उनको पहचानते हैं, अल्फ्रेड नोबल हैं. इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति कमाई, बहुत सारा चीज उन्होंने जो है वो अर्न किया, बहुत सारे पैसे, नेम फेम किया. लेकिन इनकी प्रसिद्धि, क्योंकि जो इन्होंने बनाया उसके आधार पर लोगों ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और इनकी प्रसिद्धि जो है वो अच्छी चीजों की ज्यादा किसी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए ज्यादा होने लगी. और एक बार इनके ब्रदर जो है वो एक्सपायर हुए, और उसके बाद पेपर में एक कमेंट छपा या एक स्टेटमेंट आया, दैट इज द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड. मींस इनको लोग मानते थे कि ये मौत के सौदागर हैं. तो इतना उपलब्धि, इतना साइंस में अचीवमेंट्स लेने के बाद भी अगर आपके पास पैसा है, आपके पास नेम है, फेम है, लेकिन फाइनली हाउ यू आर नोन टू अदर्स, हाउ योर डिस्कवरीज आर बीइंग यूज्ड. और जब ये उन्होंने ये कोट को उस पेपर में पढ़ा, उसके बाद से इन्होंने तय किया कि अब आज के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति है, वो सारी संपत्ति दुनिया में जितने भी लोग अच्छे काम कर रहे होंगे उनको पुरस्कृत करने में दिया जाएगा. और तब से उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जो है वो नोबेल प्राइज के रूप में लोगों को दिया जाता है. सो हियर यू कैन सी दैट व्हाट इज डोमिनेटिंग, व्हाट शुड डोमिनेट, दैट इज अ काइंडनेस व्हिच शुड डोमिनेट. इन दिस केस उसके पास प्राइज है, उसके पास पुरस्कार है, उसके पास नेम है, फेम है, सब कुछ है जिसके पीछे के लोग भागते हैं. लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद महसूस होता है कि शायद दिस इज नॉट ऑल विच इज रिक्वायर्ड. उससे ज्यादा जरूरी है हमको काइंडफुल होना. व्हाट इज एम्पैथेटिक एंड एम्पावरिंग? हमको कैसे एम्पैथेटिक होना है? मतलब एम्पैथी मींस अगर आप किसी व्यक्ति की स्थिति को समझना चाहते हो तो आप उसको उनकी आंखों से देखने की कोशिश करो कि वो अपने आप को उस सिचुएशन में रख करके सोचिए जिस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर व्यक्ति है, और वहां पर बैठ करके अगर आप उसकी तरह से सोचोगे तो आप उसकी समस्या को अच्छी तरीके से समझ पाओगे. कई बार हम कहते हैं हमारी आपके साथ सिंपैथी है, सहानुभूति है, लेकिन हम उस तरह से सोचते नहीं हैं. सहानुभूति दिखाना का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. सहानुभूति दिखाने का मतलब ये नहीं है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको अपने आप को उसकी जगह पर रख करके सोचना पड़ेगा. सो व्हाट एम्पैथी इज? सीइंग विद द आईज ऑफ अनदर, लिसनिंग विद द ईयर्स ऑफ अनदर एंड फीलिंग विद द हार्ट ऑफ अनदर. जो जैसा फील कर रहा है उस तरह से आप फील करके देखिए, देन आप समझ सकते हो कि एम्पैथी क्या है. और ह्यूमन बीइंग ही ऐसे हैं जिनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि एम्पैथी क्या होती है.
राइट। कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारी चीजें लोगों के बारे में उल्टे पुल्टे शब्द कहते रहते हैं और किसी के बारे में कुछ फील करते हैं, हम बात करते रहते हैं, लेकिन आप अगर किसी के बारे में अपने मन को खुश करने के लिए कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, वो शब्द किसी को कई बार बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहा गया है कि गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात से। कई बार लोग मर भी जाते हैं अल्फाज से, आपको पता भी नहीं है कि आपने उनके बारे में क्या कह दिया और जो कि सच नहीं था, लेकिन वो शब्द उनके लिए इतने कठोर हो गए। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट वर्ड्स आर ऑलवेज फॉरगिवन नॉट फॉरगॉटन। शब्द जो है वो सिर्फ माफ किए जाते हैं, भूलता कोई नहीं है। अगर आप किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे, वो आपको किसी स्टेज पे जाकर के माफ कर सकता है, लेकिन आप उससे उम्मीद करो कि वो भूल गया होगा, वो कभी नहीं भूलेगा। इसलिए हमको वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव, वेरी चूजी व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन। हमको वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिससे कि किसी दूसरे को जो है वो आघात पहुंचे या कोई नुकसान हो, राइट। एक और चीज, कई बार क्या होता है कि आप इस चीज को अपने साथ भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि जिस तरह से जब कभी आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, मान लीजिए किसी ने कोई चीज तोड़ दी, कोई बच्चा छोटा सा है, उसने कुछ चीज तोड़ दी और वो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसको बहुत डांटोगे या आप उससे नुकसान हो गया है, लेकिन अगर आप उस समय उसको उस तरह से ना डांट करके अगर उसको प्यार से कह दो कोई बात नहीं है, भले ही आप उसको 2 दिन 3 दिन बाद समझाइए, ये चीज अगर आप करते हैं दैट विल बी हार्ट विनिंग। वो उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज लाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसने आपसे एक्सपेक्ट किया था, आपने उसके साथ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन काम किया है या अदर देन एक्सपेक्टेड काम किया है, एंड दैट इज ऑलवेज हार्ट विनिंग। कोई टीचर, बीइंग अ टीचर, सपोज स्टूडेंट इज मेकिंग द मिस्टेक, कमिटिंग द मिस्टेक, और वो स्वयं फील कर रहा है कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन अगर वो फील कर रहा है और उसके बावजूद भी अगर उसको हम इमीडिएटली पनिश करते हैं, इमीडिएटली डांटते हैं जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, तो कुछ नया नहीं करते। लेकिन अगर उस समय उसको हम नहीं डांटते हैं, उस समय उसको नहीं कुछ कहते हैं और बाद में उसको समझाते हैं, दैट विल बी हार्ट विनिंग और इवन बिहेवियर चेंजिंग आल्सो। उस जगह से उसका बिहेवियर भी पूरी तरह से बदल सकता है। तो इसीलिए नॉट रिएक्टिंग एज एंड व्हेन इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड इज हार्ट विनिंग। जब ये सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही हो कि आप ऐसा बिहेव करोगे मेरे साथ या ऐसा रिएक्ट करोगे, अगर आप वैसा रिएक्ट नहीं करते हो, वो हार्ट विनिंग होता है। ठीक है, तो हमको ये चीज अप्लाई करके देखिए, आप इसको जो है वो कई बार महसूस करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव एंड इंस्पायरिंग। समटाइम हमारे अंदर कुछ इंट्यूशंस आते हैं, कुछ चीजें हम अपने अंदर महसूस करते हैं कि ठीक है मेरे पास फैक्ट नहीं है, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस टू ट्रस्ट ऑन एनीथिंग, बट मेरा इंट्यूशन कहता है कि ये चीज सही है। तो आपका जो इंट्यूशन कह रहा है, जो आपके पास भले ही एविडेंस नहीं है, फिर भी अगर आप मानते हो कि वो चीज सही है, बिलीव ऑन दैट, आप उस पर विश्वास करिए। इसीलिए कहा गया है ट्रस्ट ऑन गुड पीपल इवन व्हेन यू डोंट हैव प्रूफ और एविडेंस टू डू सो। अच्छे लोग कई बार ऐसे होते हैं जिनको कि अपने आप को साबित करने के लिए खुद के उनके पास एविडेंसेस नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कभी अपना ध्यान एविडेंसेस कलेक्ट करने में नहीं लगाया। वो तो अच्छा ही में उनका ध्यान था, लेकिन अगर आप अच्छे लोगों पे सस्पेक्ट कर रहे हो और इसलिए उन पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं है, तो वो सही नहीं है। इफ यू नो दैट दैट पर्सन इज गुड, उसने उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा ऐसा कोई उसका इतिहास नहीं रहा है, और अगर आज वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहां पर कि लोग उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, एट दैट कंडीशन यू हैव टू ट्रस्ट ऑन दैट, and that is also a heart winning process. So here your faith can move mountains but your doubts will create them. अगर आप किसी पे फेथ रखते हो, किसी पे ट्रस्ट करते हो, वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी जो है वो आपके जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी पे अनावश्यक डाउट करोगे तो वो बहुत से बड़े बड़े पहाड़ खड़े भी कर सकता है। इसलिए हमको ये समझना होगा कि हम अपने इंट्यूशंस की भी सुने। इंस्पायरिंग होना जरूरी है। कई बार हमको काम करने चाहिए, अपने बिहेवियर में, अपने एक्ट्स में वो लाना चाहिए जिससे कि हम किसी दूसरे को भी अच्छा करने के लिए इंस्पायर कर सकें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक बार्बर है, वो अपने उन्होंने दुकान पे लाइब्रेरी लगा रखी है, और वो इसलिए लगा रखी है कि अगर उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर आते हो, किताबें पढ़ते हो, तो यू विल गेट द डिस्काउंट ऑन हेयर कट। इन्होंने अपनी छोटी सी एक्शंस पे, बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने वो काम किया जिससे कि वो लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। लोग टीवी लगा देते हैं अपने दुकानों पे, वहां पर टीवी दिखाते हैं, मूवी लगा देते हैं, पेपर रख देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किताबें रख दी, क्योंकि उनको पता है कि किताबों से ज्ञान मिलेगा, और अगर हमने उनको
थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर कर दिया तो वो डिस्काउंट जो है वो कई बार उनको फायदा दे सकता है, इसी बहाने वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो व्हाट टू बी एंड व्हाट नॉट, क्या हमको बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। अगर हम ये चीज देखें, बी स्ट्रांग बट नॉट रूड। कई बार लोग उसको मिक्स कर देते हैं, वो कहते हैं स्ट्रांग का मतलब ये है किसी के साथ असभ्य होना। आप जब तक किसी के साथ रूड नहीं होगे लोग आपको समझेंगे नहीं कि आप कितने ताकतवर हो। ताकत का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के साथ असभ्य हो जाते हो, इसको आप मिक्स मत करिए। बी काइंड बट नॉट वीक। काइंड होना, किसी के साथ दया, किसी के प्रति दया भाव रखना इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हो इसलिए उसके प्रति दया दिखा रहे हैं। अगर आपके पास पावर होती तो आप दयावान होते ही नहीं, ऐसा नहीं है। काइंडनेस भी स्ट्रॉन्ग पीपल की पहचान है, कमजोर लोगों की नहीं है। सो बी काइंड बट नॉट वीक, बी बोल्ड बट नॉट बुली। आपको बहादुर बनना है, बहादुर बनना है जहां पर कि आप किसी विषम परिस्थितियों से किस तरह से फाइट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मैं इतना बोल्ड हूं कि चलते फिरते आदमी को मैं जो है वो मारते हुए चलता हूं, मैं क्योंकि बोल्ड हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है। सो बी बोल्ड बट नॉट बुली, बी हम्बल बट नॉट शाई। आप हम्बल रहिए लेकिन शाई मत बनिए। शाई बनने से आपकी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके हाथ से निकल सकती हैं। सो बी हम्बल, बी प्राउड बट नॉट एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंस जरूरी नहीं है। आप अपने चीजों को जो कर रहे हैं उसके प्रति आप प्राउडफुल हो सकते हैं, लेकिन प्राउड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के साथ असभ्यता करेंगे। ठीक है ना, वो प्राउड किसी दूसरे तरीके से जाना जाता है। सो बी प्राउड बट नॉट एरोगेंट। ठीक है, वो नहीं होना है। तो इसलिए कहा गया कि व्हाट टू बी व्हाट नॉट टू बी। एग्जैक्टली रूडनेस है क्या, कई बार लोग बहुत ज्यादा इंटरमिक्स करते हैं और कहते हैं कि रूडनेस से ही हमारी स्ट्रेंथ का पता चलता है या हमारी स्ट्रांगनेस का पता चलता है। रूडनेस इज द वीक पर्सन्स इमिटेशन ऑफ स्ट्रेंथ। एक व्यक्ति जो वाकई कमजोर है लेकिन वो चाहता है कि मैं दूसरे को ये साबित ना करूं या दिखाऊं ना कि मैं कमजोर हूं, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं। इसीलिए वो क्या करता है, वो अपने एक्सप्रेशन में, अपने बिहेवियर में रूडनेस लाता है। तो एग्जैक्टली रूडनेस क्या है, दैट इज इमिटेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक पर्सन। उसने स्ट्रेंथ को इमिट करने की कोशिश की है, कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या है, वीक है। इसीलिए अगर आप रूडनेस अपने बिहेवियर में लेकर के आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये साबित करते हैं यू आर वीक नॉट अ स्ट्रांग पर्सन, यू आर जस्ट ट्राइंग टू इमिट द स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली इट इज नॉट अ स्ट्रेंथ। सो ये हमें नहीं करना है। आप इनको देख करके पहचान सकते हो कौन है, शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर बाय द वे आप इनको देखो तो पहचान सकते हैं। कुछ लोग पहचान भी सकते हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं। लेकिन अगर नाम आप सुनोगे तो आप कहोगे यस, मैग्नस कार्लसन। कौन थे ये, दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर। और ये लड़का जिसको हमने पहले दिखाया, ये प्रज्ञानंदा, इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को बीट कर दिया ओनली इन 16 ईयर्स ओल्ड। सिर्फ 16 साल का लड़का है और उसने दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को बीट किया। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इट इज नेवर टू अर्ली और टू लेट टू स्टार्ट एंड नथिंग इज अनडिफिटेबल। कभी आप इन्हें कैसे करें, मैं तो अभी 16 साल के हूं, मैं किसी नंबर 1 प्लेयर को कैसे हरा सकता हूं। अगर वो सोचता तो क्या ये ऐसा कर पाते, नहीं कर पाते। अगर ये सोचे कि नहीं मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगा, जब कई सारे लोगों को हरा दूंगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब मेरी उम्र 45-50 साल की हो जाएगी तब मैं ऐसा करूंगा, तो शायद, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, तो शायद ये ऐसा अचीवमेंट ना कर पाते। इसीलिए कभी भी ये आप नहीं कह सकते कि ये बहुत जल्दी है या बहुत देर हो चुकी है, हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि डिफीट नहीं किया जा सकता, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो परिस्थिति हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते। यू कैन इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, बट फॉर डिफीटिंग दैट पर्सन और दैट कंडीशन जो आपको परेशान कर रही है, इसके लिए आपको अपने ऊपर बिलीव करना बहुत जरूरी है। व्हाट टू बी रिगार्डेड, इफ यू सी सम पीपल want it to happen। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहते हैं कि यार ये काम हो जाता तो अच्छा होता, दे विश कि ये हो जाता, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर गेटिंग इट हैपन। वो करते कुछ नहीं है, चाहते हैं कि ये हो जाए लेकिन वो करेंगे कुछ नहीं। आप ऐसा मत बनिए। सम विश इट वुड हैपन, बट व्हाट अदर्स आर, अदर्स मेक इट हैपन। So don't bring yourself or keep yourself in the category of number 1 or number 2. Just be like where you are taking the responsibility and coming forward,
taking the leadership and showing the leadership and just making it to be happen, right? So ये करने की जरूरत है, ये मत करिए, make it happen. Don't be the person where you are just willing कि हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन हम भी चाहते हो जाता बट कोई दूसरा कर दे तो ज्यादा अच्छा है। हम क्यों पेन ले इसको करने के लिए? हम चाहते तो हैं, जानते हैं ये अच्छा है, सही है, होना चाहिए, बट कोई दूसरा कर दे, हम नहीं करना चाहते। आप अगर ये अप्रोच रखेंगे तो यू विल नॉट बी रिगार्डेड, यू विल नॉट बी नोन और रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्ट रिगार्ड्स उसको ही मिलता है जो स्वयं करके दिखाता है। सोच के, ये सोचने वाले को नहीं मिलता कि हाँ हम भी चाहते थे ऐसा हो जाता और इसलिए हमको सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि हम चाहते थे ऐसा हो जाता। इस ऐसे में आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। नॉट अ नार्सिसिस्ट, बी मॉडेस्ट। व्हाट इज दैट? मतलब आप इस तरह से मत बनिए कि जहां पर आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं ही सबसे जो है वो मेरा भला होना चाहिए, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, बाकी किसी और का भला हो चाहे ना हो इससे मुझे मतलब नहीं है। तो अगर आप ऐसा बनते हैं तो आप ह्यूमन कैटेगरी में नहीं आएंगे। When you complain, sometime you have several problems around you and you are complaining. Sometime you are having the complaint from God even. भगवान से भी आपको शिकायतें होती हैं। But when you complain, you make yourself a victim. जब भी कभी आप शिकायत करते हो, आप अपने आप को विक्टिम साबित करने की कोशिश करते हैं। But what is that? अगर आपको किसी चीज से कंप्लेन है, either you leave the situation, अगर कंप्लेन है तो आप उस सिचुएशन छोड़ के चले जाइए, और चेंज द सिचुएशन इफ यू हैव द पावर टू चेंज इट। अगर आपके अंदर पावर है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, और अगर आपके अंदर पावर नहीं है देन एक्सेप्ट इट। और अगर आप ये तीनों नहीं कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, दैट ऑल इज मैडनेस। वो बाकी सब कुछ बेकार है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा है। आपको उस परिस्थितियों को स्वयं बदलना पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सक्सेस हमारी है, फेलियर तुम्हारा है। अगर कुछ फेल हो गई, कुछ गलत हो गया, वो आपकी वजह से हुआ है, अच्छा हुआ है वो सब मैंने किया है। वो लोग भी रेस्पेक्ट नहीं पाते हैं, ठीक है ना? मतलब नॉट ओनली सक्सेस, ओन योर मिस्टेक्स एंड फेलियर आल्सो। आप अपने मिस्टेक्स और फेलियर को भी एक्सेप्ट करिए, बिकॉज ये कहा जाता है कि जब तक आप अपने मिस्टेक्स और फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक आप उनसे नहीं सीख सकते। सीखने के लिए सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि ये गलती मेरे से हुई है और इस गलती से हमको क्या नया सीखने को मिला है। मिस्टेक्स होंगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलती ना करता हो, लेकिन उन गलतियों से सीख करके ही आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। जो उस गलती को मानेगा ही नहीं कि मेरे से गलती हुई है, तब तक वो उससे सीखेगा क्या? राइट? सो डोंट बी लाइक दैट। अगर आप अशिष्टता करते हैं किसी के साथ, तो जैसे मैंने कहा, इफ यू आर रूड इट मीन्स यू आर नॉट स्ट्रांग। अगर आप अशिष्टता करते हैं तो आप अपनी झूठी ताकत का प्रदर्शन करते हैं जो आपके अंदर है नहीं। अनावश्यक ज्ञान का प्रदर्शन अगर आप करने की कोशिश करते हो तो आपको ये एहसास है कि शायद मैं ज्ञानी नहीं हूँ, यहाँ बैठे लोग ज्यादा ज्ञानी हैं और मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हमको साबित करने की जरूरत है कि मैं भी ज्ञानी हूँ। तो अनावश्यक ज्ञान का प्रदर्शन अज्ञानता का है। हर जगह अपने आप को ये बताना कि मैं ही महत्वपूर्ण हूँ, आई एम ओनली पर्सन हु इज इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम द इंपॉर्टेंट, आई एम फलाना, आई एम दिस, मैं दिस पोजीशन, आई एम एट दिस पोजीशन। अगर आप हर जगह अपने आप को महत्वपूर्ण बताते हैं तो इस बात का परिचायक है कि आपके अंदर हीन भावना भरी हुई है। तभी आपको ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि मैं ही इंपॉर्टेंट हूं, मैं ही महत्वपूर्ण हूं, बाकी सब कुछ नहीं। सो डोंट बिहेव लाइक दैट। ज्यादा अगर आप बोलते हैं, इफ यू आर स्पीकिंग मोर देन रिक्वायरमेंट, इट मीन्स कि आपके अंदर अपरिपक्वता है, यू आर नॉट स्टिल मैच्योर। इसलिए आप ज्यादा मत बोलें। स्वयं गलत होने पर भी किसी दूसरे के ऊपर टोपी शिफ्ट कर देना कि ये गलती जो हुई है मेरी वजह से नहीं हुई बल्कि आपकी वजह से हुई है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आप ये करते हैं तो इसका मतलब ये नीचता का प्रतीक है, ये कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा अभी कि आपको अपनी मिस्टेक्स को ओन करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट, यस दिस मिस्टेक वाज डन बाय मी, ओपन इट, मतलब एक्सेप्ट इट ओपनली। अगर आप इसको करेंगे तो आप रेस्पेक्ट अर्न करेंगे। असली चरित्र हमारा असरदार व्यक्ति के लिए हमारे व्यवहार से नहीं प्रदर्शित होता, बल्कि उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार होगा। जो जिसके साथ अगर हम कुछ अच्छा करें तो बदले में हमसे उससे कुछ ज्यादा मिलने की उम्मीद ना हो, फिर भी हम उसके साथ अच्छा करते हैं, दैट इज आवर रियल कैरेक्टर। सेवरल टाइम व्हाट हैपन, वी आर बिहेविंग गुड विद द पीपल, वी आर वेरी गुड फॉर द पीपल जो पावरफुल है,
या जिनसे हमें उम्मीद है कि इनके साथ आज हम अच्छा करेंगे तो बदले में हमको भी इनसे ये चीज कभी आगे अच्छा मिलेगा, उनके प्रति हमारा बिहेवियर अलग होता है। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति आपको रास्ते मिल गया जिसको कि अगर आप 4 गालियां भी दे देंगे वो आपको कुछ नहीं कह सकता या बदले में आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनके प्रति आपका बिहेवियर अलग है। तो आपका रियल कैरेक्टर क्या है? रियल कैरेक्टर तो वो है जो आपने उनके साथ किया है, जो आपको बदले में कुछ दे नहीं सकते। ठीक है ना? तो इसलिए आपको ये चीज सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा। हमको क्या करना है? बी गिवर। व्हाट इज गिवर? डोंट गिव बिकॉज यू हैव एक्स्ट्रा। आई टोल्ड यू कि आप सिर्फ इसलिए मत दीजिए क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा है। गिव बिकॉज यू फील प्लेजर ऑफ बीइंग गिवर। आप इसलिए दीजिए क्योंकि आप जब किसी को कुछ देते हैं तो आपको एक आनंद का एहसास होता है कि आई एम अ गिवर, आई एम नॉट अ रिसीवर। मेरे पास आज ईश्वर ने ऐसा इतना दिया है कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। एंड लेट अदर्स फील इट। आप भी प्लेजर महसूस करिए और दूसरों को भी महसूस कराइए। दैट इज कॉल्ड ग्रेटिफिकेशन। जहां पर आप अपनी खुशी को किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हो, जहां पर आप जिस चीज का प्लेजर फील कर रहे हैं अगर वो किसी दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिफिकेशन। और इसके लिए आपको गिवर होना बहुत जरूरी है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां, ऐसी कंडीशंस जहां पर कि वो आपके लिए बड़ी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर आप अपना सर्वोच्च देने का प्रयास करते हो, आपको लगता है कि नहीं हम ऐसे कंडीशन से घिरे हुए हैं जहां पर कि हमारे लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं, तब भी जब कोई देख ना रहा हो या किसी को दिखाना ना हो, उस समय भी अगर आप अपना कर्तव्य निभाते हैं। सर्वल टाइम हम तब अपना ड्यूटी फुलफिल करते हैं जब देखते हैं यार कैमरे लगे हुए हैं, अब हमको करना होगा, नहीं मैं पकड़ जाऊंगा, या कोई देख रहा है, या हम ऑन एयर जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं तो हमको सही बोलना है। नहीं, आप तब भी वही वही चीज फॉलो करते हैं जब आप सार्वजनिक होते हैं तब भी, और जब आपको कोई देख नहीं रहा है तब भी आप वही चीज फॉलो करते हैं। दैट इज द मेन थिंग। कई सारी आपके आसपास ऐसी चीजें हों जो आपको डिस्करेज करती हों, लेकिन फिर भी आप अपने आप को उन डिस्करेजिंग एलिमेंट्स के बावजूद भी अपने आप को अगर इंकरेज कर सकते हो, स्वयं मोटिवेट कर सकते हो, और जो आपके आसपास रिसोर्सेज हैं उन संसाधनों में खुश रहते हुए अपना 100% देने का प्रयास करते हो, तो एक चीज तय है कि ऐसी दशा में अगर आपके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, भले ही देर से सही, लेकिन एक ना एक दिन आप ऐसा चीज अचीव करोगे कि लोग आपकी नजीरें देंगे, कहेंगे कि आप उन परिस्थितियों में भी जहां पर कि मोस्टली लोग टूट जाते हैं, वहां पर रहते हुए भी आपने अपना 100% डिलीवर किया और आज आपने ये अचीव किया। सो डोंट जस्ट एक्सपेक्ट कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं अच्छा करूंगा। सब कुछ अच्छा तो कभी हो ही नहीं सकता, उसको तो बनाना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है कि जो कुछ भी हमारे आसपास है वही सबसे अच्छा है और उसी में हमको सबसे अच्छा परफॉर्म करके देना है, तभी आपको लोग जानेंगे। तो इसलिए आपको ये चीज महसूस करनी होगी। बी हम्बल एंड हेल्पिंग। व्हाट इज दैट? आपको हम्बल रहना बहुत जरूरी है। बी काइंड और दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। कितना भी बड़ा आपका घर हो, कितना भी नई आपकी कार हो, कितना भी ज्यादा बैंक अकाउंट आपके पास हो, लेकिन हर आदमी जब मरता है तो उसकी जो ग्रेव का साइज है वो बराबर ही होता है। तो इसलिए आपकी हम्बलनेस बहुत जरूरी है, विच विल बी केप्ट रिमेंबर्ड। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब वही चीज आपको आपकी ध्यान रखी जाएगी। और कोशिश करिए कि आप किसी दूसरे की मदद करें तो एक्चुअली मदद करें, मदद की दिखावा मत करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मदद तो कर रहे हैं, करना चाह, इसको लग रहा, इनको लग रहा है कि ये मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मदद करना चाहते हैं तो ये रस्सी यहाँ डाल सकते थे, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो ये लोग, ये कई बार बहुत सारे लोग करते हैं, और कतई ये वाला काम तो बिल्कुल मत करिए। ठीक है ना, कि जिनकी मदद की जा रही है वो जो जिसको मदद कर रहे हैं वही इनके पीछे से ये इसको वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है तुम मदद कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मदद जो है वो हमारी मदद करके तुम्हारी मदद कोई करने वाला ना रहे। तो ऐसा ना हो। बी हम्बल एंड एक्चुअली हेल्पिंग। नाउ बी यूजफुल। ये बहुत जरूरी है। आप समझिए आपकी वैल्यू किसी के सामने तभी होगी जब तक कि आप उसके लिए यूजफुल रहते हो, चाहे वो आपका परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। ये ऐसा कटु सत्य है जिसको कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी के लिए यूजफुल नहीं रहे तो आपके अपने फैमिली मेंबर भी हो सकता है आपको उतना सम्मान ना दें। इसलिए आपको अपनी वैल्यू अगर चाहिए तो वैल्यू के लिए आपका यूजफुल होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके अंदर वो क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। ट्राई टू बी ऑलवेज अ यूजफुल पर्सन, नॉट जस्ट अ लाइबिलिटी। किसी के लिए आप लाइबिलिटी मत बन जाइए, अरे यार अब तो मेरे को ये
मेरे सिर पे वह बोझ आ गया, मुझे किसी तरीके से इसका तो भरपाई करनी ही है। ऐसा मत करिए। आप किसी के प्रति अपने आप को लायबिलिटी मत बना करके रखिए। बी यूजफुल फॉर दैट, it creates value for you. If you will be always useful, that will create the value for you. Okay, now one more thing, several time what we want कि सब लोग हमको समझें, लेकिन हम किसी को नहीं समझते, हमको लोग समझें। we want कि I should be मतलब we are very desperate to be understood, but we are not understanding. So if you want that everyone should understood you, then first you be understanding. आप दूसरों को समझने का प्रयास करिए। आप अगर इस तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि हम चाह रहे हैं। Have some morals in your life and be motivating. What are the morals? There are 6 ethics of the life which you should keep in your mind. Believe before you pray, just believe. अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो तो उस जिससे प्रार्थना कर रहे हो उसके ऊपर पहले विश्वास करो, भरोसा करो कि अगर हम इनसे प्रार्थना करेंगे तो हमको मिलेगा। तो आप तभी प्रार्थना करो जब आपको उस पर विश्वास है, भरोसा है, तभी आप प्रार्थना करिए। तो बिफोर यू प्रे जस्ट बिलीव, बिफोर यू स्पीक लिसन, क्योंकि अगर आप सुनने के बाद बोलेंगे तो आप सही बोल पाएंगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप वही बोल रहे हो जो आपने अपने दिमाग में पहले से तय कर रखा है। एग्जैक्टली वो बोलना नहीं था, क्योंकि आपने सामने वाले को सुना ही नहीं। अगर आप सुन के बोलते तो आप उस चीज का जवाब दे रहे होते जो सामने वाला सुनना चाहता है। लेकिन जब आप बिना सुने बोलते हैं तो आप वही बता रहे हो जो आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि हमको क्या बोलना है। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। वन शुड बी अ गुड लिसनर आल्सो। ठीक है, कई बार हम कहते हैं हमको हमारे अंदर बोलने की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बट कम्युनिकेशन में ये भी आता है कि वन शुड बी अ गुड लिसनर आल्सो। सो बिफोर यू स्पीक लिसन, बिफोर यू स्पेंड अर्न। ये चीज भी हमको बहुत ध्यान रखनी है। सेवरल टाइम इट हैपन कि हमारे पास जब तक हम डिपेंडेंट होते हैं, माँ बाप हमारा खर्चा उठा रहे होते हैं, हम खूब जो है वो खर्च करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है, एहसास नहीं है कि हमको वो पैसे कैसे आएंगे। लेकिन हमको ये एहसास होना चाहिए, हमारे एथिक्स में होना चाहिए कि हम उतना ही खर्च करें जितना कि हम कमा सकते हैं। कहते हैं सबसे ज्यादा अमीर वो व्यक्ति नहीं है जो जिसकी सैलरी बहुत मिलियंस में है। अमीर वो भी है अगर उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है और उसकी महीने का जो खर्च है वो 10,000 रुपए है, तो उसने 90,000 रुपए एक महीने का बचा लिया, वो भी अमीर है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो 1 लाख कमा रहा है और उसने 90,000 खर्च करके 10,000 बचाया, वो अमीर नहीं है। सैलरी बराबर है, लेकिन अमीर कौन हो रहा है? जिसकी खर्चे उतने ज्यादा नहीं है। सो ये चीज आपको देखना होगा। बिफोर यू राइट थिंक, आप लिखने से पहले सोचिए। बिफोर यू क्विट ट्राई, एंड बिफोर यू डाई लिव। अगर ये तो सबके साथ होना है, दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ कि सबको मरना है, बट बिफोर यू डाई जस्ट लिव योर लाइफ। वरी अबाउट योर कैरेक्टर। वन मोर थिंग, समटाइम व्हाट हैपन कि हम लोग अपने कैरेक्टर के बारे में चिंता नहीं करते, हम अपनी रेपुटेशन के बारे में चिंता करते हैं। हम अपने आप को इस तरह से पेश करना चाहते हैं जिससे कि हमारी रेपुटेशन अच्छी बनी रहे, और इसीलिए हम बहुत सारे दिखावे करते हैं, बहुत सारे अपने आसपास ऐसी चीजें इकट्ठी करते हैं जिससे कि हमारी रिप्यूट हाई रहे। महंगी गाड़ी हो, उसे उतरेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर हम अपने कैरेक्टर की टेंशन करेंगे तो व्हेन यू आर वरीइंग अबाउट योर कैरेक्टर, बिकॉज कैरेक्टर इज हु यू आर, एक्चुअली यू विल बी नोन बाय योर ओन कैरेक्टर, नॉट बाय रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन वो है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं, और दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं वो सदैव सही नहीं हो सकता। आप एक्चुअली क्या हो वो ज्यादा सही है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट कि एग्जैक्टली आप क्या हो और क्या होना चाहिए, आपकी रेपुटेशन अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ रेपुटेशन पे फोकस करते हो तो शायद आप अपना कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर सकते। सो फोकस ऑन योर कैरेक्टर, नॉट ऑन अर्निंग जस्ट रेपुटेशन, बिकॉज कैरेक्टर बिल्ड करने वाला जो व्यक्ति होगा या कैरेक्टर पर फोकस करने वाला जो व्यक्ति होगा उसकी रेपुटेशन अपने आप अच्छी हो सकती है। सो फोकस ऑन दैट। Altruistic and aspiring. Don't think that you are better than anyone. आप ये कहो ना सबसे अच्छे तो हम ही हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को अच्छा बताने के चक्कर में कि सबसे अच्छे हम ही हैं, किसी दूसरे को नीचा दिखाना कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी लाइन बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइन बड़ी करिए,
किसी दूसरे की बड़ी लाइन को छोटा करके अपने आप को बड़ा मत बताइए। सो डोंट थिंक दैट यू आर बेटर देन एनीवन, रादर थिंक बेटर फॉर देम। उनके लिए अच्छा सोचोगे, आपकी लाइन अपने आप बड़ी हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे को लेते हुए अपने साथ चलते हो, आप अपने लिए रिस्पेक्ट अपने ऑटोमेटिकली आपके लिए आएगी। लेकिन किसी दूसरे को नीचा दिखा करके अपने आप को वैल्यूएबल साबित करेंगे तो आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो ये आपको फर्क समझना है। द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर देन इज द पर्सन यू विल स्टडी। आपका कंपटीशन अपने साथ होना चाहिए कि हमको इनसे कंपेयर नहीं करना है, उनसे कंपेयर नहीं करना है कि हमको उनसे अच्छा बनना है, उनसे अच्छा बनना है। अगर आप किसी दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन करने लगते हो तो आप ये पहले एक्सेप्ट कर लेते हो कि इसका मतलब ये है कि ये वो हमसे ज्यादा अच्छा है, तभी हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। सो व्हाई आर यू जस्ट कंपेयरिंग विद अदर्स? कंपेयर विद योरसेल्फ। सी दैट व्हाट यू आर स्टडी एंड व्हाट इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड। जो इंप्रूवमेंट्स आपको चाहिए वो आज आप करके देखिए एंड ट्राई टू कम्पीट बाय योरसेल्फ ओनली। ये आपके अंदर परिवर्तन लाएगा, आपको इंप्रूव करेगा, और वही जरूरी है। किसी दूसरे को अपने अपने साथ अपने सामने मत रखिए, अपने आप को अपने सामने अपना कॉम्पिटिटर मान करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। दैट विल रिफाइन टू योरसेल्फ एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? सो हियर आई सेड ग्रो विद इंक्लूसिवनेस। आप भी आगे बढ़िए और अपने दूसरे सबको साथ में लेकर के आगे बढ़िए। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिवनेस। और ये जाना था, ऐसे मत करिए। आप अगर एक ये व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है, जब ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो ये दूसरों को अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। ये है सक्सेस। एक ऐसे हैं जो किसी दूसरे को उस पायदान से गिराने के बाद यहां पहुंचे हैं, ये सक्सेस नहीं है। दोनों उसी पायदान पे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो उसको करने के बाद अपने आप को भी दूसरों को भी साथ में लेकर के चल रहा है। लेकिन ये वो है जो किसी दूसरे को गिरा करके आगे बढ़े। सो डोंट बी अ बॉस, try to be a leader. What is difference? बॉस क्या करते हैं? बॉस दूसरों को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए। बाकी आप क्या चाहते हो, जस्ट गो टू हेल। मैं क्या चाहता हूं वो होना चाहिए। बॉस वो होता है। जो लीडर है वो कोच करते हैं, सिखाते हैं कैसा होना चाहिए, ताकि जो नॉलेज हमारी है वो आप में भी ट्रांसफर हो सके, सो दैट आप भी इंपावर हो सको। ये है लीडर। बॉस डर पैदा करते हैं। देखो मेरे पास ये पावर है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपका ये बुरा कर दूंगा। ये बॉस है, क्योंकि वो फियर इंस्पायर करता है ताकि आप उसके रेस्पेक्ट कर सको। लीडर क्या कहता है? वो इंथुजियाज्म इंस्पायर करता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, चलो मिलकर करते हैं। आपके अंदर इंथुजियाज्म डेवलप करेंगे जिससे कि उस काम में आप अपने आप 100% डिलीवर करने की कोशिश करो। दैट इज अ लीडर। बॉस अपनी गलतियों के लिए भी दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कसूरवार ठहराना चाहते हैं, दे ब्लेम अदर्स। बट लीडर, जो लीडर्स हैं, वो क्या कहते हैं? दे वांट्स टू फिक्स इट। वो मदद करते हैं कि चलो ठीक है, जो प्रॉब्लम हो गई होगी, अब आप देखिए कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, हाउ टू फिक्स इट। उसको फिक्स करने में मदद कर देता है। दैट इज अ लीडर। बॉस की फोकस इस बात पे रहती है बताओ गलती किसने की, जिसने की हम उसको शू कर देते हैं, हम उसको फायर कर देंगे। लेकिन लीडर इस बात पे फोकस करते हैं कि गलती अगर अनजाने में हो गई है, जानबूझ के नहीं की गई है, सो लेट इट बी, फॉरगेट इट, और आओ हम इस पे फोकस करते हैं कि हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। सो इसको हमको अपने अंदर लाना है। बॉस कहता है जो कुछ भी है मैं ही हूं, लीडर कहता है हम सब हैं, वो सबको साथ में लेकर चलता है। बॉस कहते हैं मुझे पता है कि ये काम कैसे किया जाता है, लीडर कहते हैं कि ठीक है, आओ हम आपको बताते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। ठीक है ना? बॉस इस चीज को चाहते हैं कि सारा नॉलेज हमारे अंदर कंजर्व रहे, आपके अंदर ट्रांसफर ना होने, आप बॉस बन जाओगे। लीडर कहते हैं कि हमारे अंदर जो नॉलेज है वो आपके अंदर भी ट्रांसफर हो, ताकि आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो और आप भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे को लीड कर सको। दैट इज अ लीडर। बॉस अपने अथॉरिटी पे डिपेंड रहता है कि आज अगर मैं हेड हूं या मैं डायरेक्टर हूं या मैं कोई भी किसी पोजीशन पे हूं, तब मेरा रिस्पेक्ट है। अगर मैं इस पोजीशन पे नहीं रहूंगा तो मेरा रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। दैट डिपेंड्स ऑन अथॉरिटी। लेकिन जो लीडर है वो अपनी गुडविल पे डिपेंड करता है। वो किसी पोजीशन पे नहीं भी रहेंगे तब भी उनकी रिस्पेक्ट उतनी ही रहेगी जितनी कि उस समय भी थी जब वो किसी पोजीशन पे थे, क्योंकि उस पोजीशन पे रहते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न करी, अपनी गुडविल बनाई। उस पर डिपेंड करते हैं। बॉस लोगों को इस्तेमाल करते हैं और
जो लीडर हैं वो लोगों को विकास करते हैं, उनको डेवलप करते हैं सो दैट वो अपने आप को सक्षम बना सकें। बॉस क्रेडिट ले लेते हैं, कुछ भी होता है खुद ले लेते हैं, लेकिन जो लीडर है वो क्रेडिट देने पे विश्वास करता है। अगर आप अच्छा करोगे तो यस यू हैव डन इट। हमने एक कोट उसमें सुनाया था कि जब कोई जो है वो मिसाइल बना रहे थे और उसमें ग्रुप लीडर थे ऑनरेबल APJ अब्दुल कलाम साहब, और वो मिसाइल पहली बार में फेल हो गया। उन्होंने ये एक स्टोरी सुनाई थी, और उसके बाद जब वो फेल हो गया तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उसको एक्सेप्ट करने जा रहे थे, तो उन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने वो माइक उनसे छीन लिया और कहा कि जो कुछ भी फेलियर हुआ है वो जिम्मेदारी मेरी है, बिकॉज बीइंग अ डायरेक्टर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात कलाम साहब को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बहुत इंस्पायर हुए वो, उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि अब मैं दोबारा से इस मिशन पे लगूंगा और इसको करके दिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस मिशन को सक्सेसफुल किया, फिर से कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माइक डायरेक्टर साहब को दे दिया कि आप ही बोलेंगे। तो डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं, दिस टाइम द ऑल क्रेडिट गोज टू अब्दुल कलाम जी, बिकॉज इनकी टीम ने ये सारा काम किया है, इसलिए ये जो भी की अचीवमेंट है वो इनको जाता है। सो व्हाट दैट डायरेक्टर हैज डन, उन्होंने जब फेलियर हुआ उसको उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया, और जब सक्सेस हुई उसको उन्होंने दूसरों के साथ बांटा। ये लीडर होता है। इस वजह से, और वही चीज इंस्पायर करती है, जीवन भर इंस्पायर करती है, लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप कमांडर मत बनिए कि सीधे आदेश देना है, जो भी मैंने कहा वो कर लिए। पूछिए, सेवरल टाइम वी हैव टू इन्वॉल्व टू अदर्स। आप किसी अपने जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ पूछिए कि यार ऐसे कर लिए थे, ऐसे करेंगे तो कैसा होगा। दे विल फील यस आई एम आल्सो हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजंस। Decision is not taken by any particular one person. Decisions are just taken by all. So be like that. Okay. So this is what the boss and leader is. So leadership is what? It is not about the power. Some people are thinking like leadership is something acquiring the power. No, it is not about the power. It is about the responsibility. If you are a leader, you should take the responsibility. You should lead from the front. आपको आगे आकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तब आप लीडर कहलाएंगे। पर्दे के पीछे रह करके आप ये कहें कि नहीं मैं लीडर हूं, यू नॉट अ लीडर। सो आपको क्या बनना है? यू हैव टू बी अ लीडर। ठीक है, बी अ लीडर एंड ग्रो अलोंग। ठीक है, आप लीडर बनिए और सबको सबके साथ ग्रो करिए। बी नेचुरल एंड नर्चरिंग। Several times what happen, we are working to impress the people. Sometimes we are, whatever the way we are speaking, the way we are working, we just are focusing that we should impress to the people by our working. If you are focusing on impressing to the people, sometimes you may fail. Focus on expressing the things. अगर आपका फोकस इस बात पे, जैसे सपोज करिए, if I am telling something, if I am focusing on just language only, then maybe that I am not able to communicate what I just want to. But if I am using the different languages, I am feeling that how to express my things, what I would just want to tell you, their language should not be a bar. So वहां पर हमको हमारा फोकस एक्सप्रेशन पे होना चाहिए, इंप्रेशन पे नहीं. So be big enough to admit your mistakes, smart enough to learn from them, and strong enough to correct them. आपके अंदर ये अगर चीजें नहीं होंगी तो वो नहीं होगा. एक चीज आपको ध्यान रखना है, कई सारे लोग ऐसे आपके आसपास, आपके जीवन में ऐसे होंगे जो आपको आपकी खामोशी में भी आपको सुन लेते हैं. आप कुछ बोलते नहीं हो, आप कुछ कहते नहीं हो, लेकिन फिर भी वो समझ जाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या परेशानी है. वो आपकी खामोशी में भी आपको सुन सकते हैं. वो जो उन गलतियों के लिए आपको माफ कर देते हैं जिनकी माफी आपने कभी आज तक उनसे मांगी नहीं, लेकिन फिर भी वो माफ कर देते हैं क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं. तो ऐसे लोग हमारे हम सबके आसपास ऐसे होते हैं जो हमको हमारी खामोशी में सुन लेते हैं, उन गलतियों के लिए भी हमको माफ कर देते हैं जिनकी माफी हमने कभी नहीं मांगी. वो जो बिना किसी लाभ की उम्मीद के भी हमको सदैव प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, उन सबको हमको सदैव अपने आसपास बचा के रखना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप तारे गिनने के चक्कर में पड़े हुए हैं और चांद जो है वो आपसे क्या हो गए हैं, छूटे जा रहे हैं. जो एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, और आप कुछ ऐसी चीजों पर फोकस कर रहे हो जिनकी एक्चुअली आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस होनी नहीं चाहिए. तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो लोग कौन है. एंड डोंट थिंक दैट इंटेलिजेंस इज इनेट. आदमी इनबोर्न इंटेलिजेंट होता, नो, इट इज द कैरेक्टर जो आपको अपने जीवन में
एक्वायर करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ग्रेट मैन है, जैसे इन्होंने देखा आपकी ही वाज बोर्न फैट एंड विद अ बिग हेड, बट आगे चल के क्या बने? एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो आई मीन कि आप जन्म से इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट होता अगर मैं जो है वो आइंस्टाइन के परिवार में पैदा हुआ होता, तो ऐसा नहीं है। आप इंटेलिजेंस को एक्वायर कर सकते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं हो सकता था लेकिन मैं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा नहीं हुआ। बी मेच्योर, ट्राई टू बी मेच्योर। व्हाट मेच्योरिटी इज? Maturity is when you have the power to destroy something, but you are not destroying. What you are doing? You are constructing the things. आपके पास हथौड़ा है, आप चाहो तो उसको तोड़ भी सकते हो, लेकिन आप उसी हथौड़े से कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी. You can take revenge. Sometime what you come in power and you have felt like हमको बहुत गड़बड़ किया गया, अब मैं पावर में आ गया हूँ, अब मैं बदला ले सकता हूँ, उसका बिगाड़ सकता हूँ, उसका बुरा कर सकता हूँ. But if you are focusing on the revenge, then it means you are not mature. If you are mature, then don't focus on taking the revenge, focus on to change the conditions. जो पहले गलत चीजें थी, खराब चीजें थी, उनको बदलने की कोशिश करिए जिससे कि लोगों को फायदा हो. Don't just involve your energy in taking the revenge only. अगर आप बदले में अपना पूरा एनर्जी लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इमेच्योर कहलाएंगे, आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं है. You can demolish, but you are not demolishing. You are trying to build. You are focusing on building the things. You can instigate. आप किसी ने गलत किया है, उसके खिलाफ आप किसी को भड़का सकते हो. देखो उन्होंने गलत किया, आपके पास एविडेंस भी है, प्रूफ भी है, आप इंस्टिगेट कर सकते हैं, बट आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं. आप किसी को फोकस कर रहे हैं कि ये समस्या कैसे कम हो. दैट इज मैच्योरिटी. यू कैन क्विट. आप चाहो तो आप उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो. आपके पास ऑप्शन है कि आप छोड़ सकते हो, बट यू आर नॉट क्विटिंग, यू आर ट्राइंग again. That is called maturity. Okay, so this is what the maturity is. Now markers of maturity. What are the markers of maturity? बोलने से पहले सुनना, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना, मारने से पहले क्षमा करना, आलोचना करने से पहले प्रतीक्षा करना, हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करना. यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है. राइट? अगर आप मेच्योर हैं तो आप इस तरह करें. So when you can take privilege but you don't. कई बार क्या होता है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां पर कि आप प्रिविलेज ले सकते हैं. प्रिविलेज मतलब आप उस परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप नहीं करते हो. दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी. ठीक है ना? आपकी एथिक्स क्या कहते हैं. आप चाहो तो आप लाभ ले सकते हो उस परिस्थिति का, लेकिन आप वो लाभ ले नहीं रहे हैं. दैट इज व्हाट इंटीग्रिटी इज. सो वन शुड हैव द इंटीग्रिटी. जहां पर आप ये कहो, ये आपने देखा होगा कृष्ण कौन है? ये जिनके पास पहली गाली पर भी सिर काटने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने 99 गालियां सुनी, उसके बाद उन्होंने जो है वो कुछ एक्शन लिया, वो कृष्ण है. आपका सामर्थ्य है, यू हैव द पावर, बट इवन देन यू आर नॉट डूइंग इट. आप फिर भी क्षमा कर देते हो, वो है. जिसके पास सुदर्शन जैसा शस्त्र हो लेकिन फिर भी हाथ में सदैव क्या है? मुरली है. आप ये देखिए ना, इसीलिए उनको भगवान माना जाता है कि जिनके पास इतना पावरफुल चीज है लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या शो करते हैं दुनिया को? सुदर्शन नहीं शो करते, मुरली शो करते हैं. उनके पास द्वारिका जैसा वैभव है, फिर भी उनके पास कैसा दोस्त है? सुदामा जैसा. वो चाहे तो मृत्यु के फन पर मौजूद है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं. वहां पर भी उस कंडीशन में भी वो खुश हैं. वो इस चीज की सीख देने की कोशिश करते हैं. सर्व सामर्थ्य होने पर भी, सब कुछ पावर है, सारी पावर है, भगवान है वो, लेकिन फिर भी वो क्या बने? सारथी बने. ये है कृष्ण. ये चीजें उनसे सीखने लायक है. तो हाउ इट कम्स, कैसे मैच्योरिटी आती है? दैट कम्स विद, अगर आप नॉलेज आपके अंदर होगी, स्किल्स होंगी, एक्सपीरियंस होगा, विजडम होगा, तब आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी. ये सारी चीजें आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है. ठीक है ना? और नॉलेज ऐसी चीज है जिसको कि आपसे कोई चुरा नहीं सकता, आपसे कोई ले नहीं सकता, आपको कोई जो है उससे काट नहीं सकता कोई. आप यहाँ पर देखते हैं कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके प्रति हमको रिस्पांस देने की जरूरत नहीं होती. हम उनसे रिस्पांस ना दें तब भी उनको अच्छा रिस्पांस मिल जाता है. जैसे आप देखते हो, ये एक चिड़िया है, ईगल है, इसके ऊपर एक मात्र बर्ड है जो जाके बैठ गई, रेवन, उसके गले में बार बार उसको प्रिक करती है और उसके बाद उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करती है. लेकिन इसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया. ये इन्होंने अपनी उड़ान को ऊंची कर दी, और जब बहुत ऊंचाई पे चली जाती है ये ईगल,
तो इस चिड़िया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और हाइपोक्सिया के कारण अपने आप ही चिड़िया गिर जाती है। कोई रिएक्शन नहीं किया उसने। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत छोटा है लेकिन आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आप उसके लिए रिएक्ट मत करिए, अपनी उड़ान को ऊंची कर दीजिए, अपने आप वो हाइपोक्सिया की वजह से गिर जाएंगे। तो ये भी एक रिस्पॉन्स है। सो एवरीथिंग इज नॉट आई मीन डिजर्विंग योर रिस्पॉन्स। हर कंडीशन, हर व्यक्ति आपका रिस्पॉन्स डिजर्व नहीं करता। नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर क्रिटिक्स आर नीडेड टू बी आंसर्ड। जस्ट लिफ्ट अप स्टैंडर्ड, दे विल फॉल ऑफ। अपना स्टैंडर्ड ऊपर करिए, अपने आप जो है वो खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनको कि हम मानते हैं कि ये यहीं से सब कुछ खत्म हो गया। तो ऑल कंडीशंस आर नॉट परमानेंट, ठीक है। वो चीजें क्या है, बहुत ही टेम्पररी हो सकती हैं, उनसे हम बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक हिरन है, हिरणी है, ये बेचारी शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी वॉज अबाउट टू ले द बेबी, बट जिस जंगल से वो आई थी वहां आग लग गई। वो सामने जो है वो नदी थी, एक तरफ शेर था जो भूखा था, जो उसको खाने के लिए आ रहा था, और उसकी दूसरी तरफ आप देखते हो कि वहां पर एक जो है वो हंटर है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। वो सोचा मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं तो ये मारेंगे, उधर नदी है, उधर आग लगी हुई है और ऊपर बादल छाए हुए हैं, जब बारिश होने वाली है। अचानक से उसने भगवान को याद किया, अपने काम में फोकस किया और फाइनली क्या हुआ, बारिश होने लगी, बिजली कड़की और आंख में ओझल हो गया। इस शिकारी ने जो है तीर चलाई और जाकर के लायन को लग गया, लायन मर गया और कंडीशंस जो है वो नॉर्मल हो गई और बारिश हो गई तो आग बुझ गई और सब कुछ सही हो गया। तो कई बार ये परिस्थितियां जिनको हम मानते हैं कि यार अब मेरा तो सब कुछ बेकार होने वाला है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन हो सकता है कि अगले ही पल वो परिस्थिति क्या हो जाए, बदल जाए। तो हमको उस पर विश्वास करना पड़ा है। इसलिए हर सिचुएशन जो है हमारी लाइफ में टेम्पोररी है, वो बदल सकती है, आप उसको परमानेंट मानिए। जब लाइफ हमारी बहुत अच्छी चल रही हो तो आप इंश्योर करिए कि आप इंजॉय कर रहे हो और आप इसको पूरी तरह से ले रहे हो। लेकिन जब आपकी लाइफ अच्छी नहीं है तब आप ये महसूस करिए, याद रखिए कि ये जो कंडीशन है, ये जो परिस्थितियां हैं वो बहुत जल्दी बीत जाने वाली हैं, अच्छा समय भी आएगा। इसलिए ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। सो बी थिंकर, आप थिंकर बनिए, अपने आप को इस तरह से फोकस करिए कि हम क्रिटिकल थिंकर बने, क्रिएटिव थिंकर बने, चीजें सोचें। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं कई बार हमको स्पेशलिस्ट तो बनाते हैं लेकिन वो थिंकर नहीं होते, डिफरेंट परिस्थितियों में सोच नहीं सकते। तो हमको फोकस करना है किस पे, कि बी क्रिएटिव थिंकर। ट्रेनिंग शुड बी गिवन सो दैट द पीपल कैन बी क्रिएटिव थिंकर। एरर्स एंटिसिपेटर, जहां पर कि आप गलतियां एंटिसिपेट कर सको, ये गलती हो सकती है। लाइफ साइंटिफिक लर्नर, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्वर एंड करेक्टिव एक्शनर्स, जो करेक्टिव एक्शन ले, गलतियों के अगेंस्ट कोई करेक्टिव एक्शन ले। सो व्हाट अल्टीमेट इज स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, नॉट फॉर द सक्सेस। कई बार हम क्या होता है कि हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, एक्सीलेंस के पीछे नहीं। ये 3 Idiot में भी आपने सुना होगा, वहां पे उन्होंने कहा था कि अगर आप एक्सीलेंस के पीछे भागोगे सक्सेस अपने आप मिलेगी, लेकिन अगर आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो एक्सीलेंस आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट इज व्हाट, एक्सीलेंस नॉट अ सक्सेस। सो तुच्छ व्यक्ति जो होते हैं वो घमंड के वशीभूत होकर अपने से नीचे के जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। सो डोंट बी लाइक दैट, ओके। सो दिस इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू, नमस्कार।